Hello, everyone. Welcome to the very special live session where we talk about something close to all our lives. And it is not talked much about health, hygiene, preventive care, especially for adolescents as well as both boys as well as girls. So, joining us today is someone who needs no introduction. So, in the world of women healthcare, she's a very renowned figure, Dr. Aruna Kalra. Thank you so much, Dr. Aruna, for being here. And it's always been a wonderful conversation with you. And it's always a pleasure to have you on this. Thank you very much. Thank you, Swati. So, Dr. Aruna is a director and senior gynecological surgeon at CK Birla Hospital. She's a managing director of Mums Clinic Gurgaon, a gold medalist, TEDx speaker, a community health champion. She is here to break myths, bring clarity, as well as empower us with all the knowledge. So, those who have not grabbed a pen and paper, get your pen and paper, because here we'll have a conversation where there will be a lot of knowledge exchange, as well as something which we have not talked much about. Yeah. So I have some set of about 8 to 9 questions. So can I just blast it on you and you can help us with your wisdom? Sure. Go ahead. Shoot. Okay. So why do you believe that early education around reproductive and menstrual health is essential? Okay. So first thing is, Swati, you're doing a great job about parenting. Because though I'm 52 and I have grown-up kids, but still every day I feel that parenting is every day is a new challenge. Absolutely. And I always ask God कि भाई यहाँ पर क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा हमें. Yes. तो चाहे वो young बच्चे हों, adolescent हों या above like young adults ho. It is always tricky situation है ना. So and you are doing a great job because I feel like calling you every time कि भैया अब बता दो यहाँ पे क्या करना है. ये situation तो मेरे में कभी नहीं आई. I'm a new parent and I don't think I can ever learn parenting. So this is one thing which like I wanted to congratulate you about. And your question is like why there is a need to educate kids about whether it's menstrual health or about growing up. So the thing is that in our generation when you just go back हम लोगों को periods आए माँ ने कहा कि ये देखो ये पैंटी है ये पैड ऐसे लगाना है या ये कपड़ा है तो बस हो गया और सब हश ठीक है और कुछ बताया नहीं क्यों हो गया क्यों होना हर महीने होगा ठीक है बस हो गया तो she never wanted to talk about it or explain because I think she herself was ashamed about it or like many things we were ashamed about. Nowadays we take menstrual classes for girls and the other day I was taking the same menstrual hygiene class and otherwise growing up class for girls in one of the reputed school in Gurgaon. And there was a girl 12 years old. She stood up and she said ये class boys की क्यों नहीं लग रही है because when we stain our clothes they should not be sensitized about it and why you are taking this class only for girls. And it was absolutely right question because if they are not sensitized whether those are boys for they have sisters at home, they have mothers at home, they should know that what menstrual cycle is, what a girl is going through and if she is in need around that time, like whether it's painful period or she stained her clothes or something else around it, menstrual or premenstrual symptoms or mood changes, they should know about it. Only then they can help. Only then they can be can extend support to us. तो अब अगर हमें बताएंगे ही नहीं उनको और लड़कियों को दोनों को तो एक तो हाइजीन बहुत नहीं उनको समझ में आएगी. तो इट इज़ अबाउट ग्रोइंग अप. जैसे अगर लड़का के एकदम हाइट बढ़ी, उसके बाल आ गए और उसकी वॉइस क्रैक होना शुरू हो गई. अगेन मदर्स वुड नॉट टॉक अबाउट इट. लड़का तो बेचारा शाई हो ही जाएगा. वो तो शर्म के मारे शॉर्ट्स पहन रहा था तो पैंट्स पहनने लग जाएगा और अपने मतलब जो टी शर्ट अपनी माँ के सामने उतार देता था नहाने के लिए वो नहीं करेगा. लेकिन माँ भी तो नहीं बोलती कि यार तू बड़ा हैंडसम लग रहा है, बड़े अडल्ट हेयर आ गए तेरे, है ना. ऐसे तो कभी नहीं कि तेरी छोटी छोटी मूछें आ रही हैं और या फिर यू आर ग्रोइंग अप या when they have wet dreams पेनिस से 3-4 दिन बाद seminal fluid निकल गया and they are really worried about it like ये क्या हो गया, कहीं यूरिन तो नहीं निकल गया, whether it's something abnormal. Until unless you tell them कि ये wet dreams अच्छा हमारे ज़माने में तो गूगल भी नहीं होता था, उनके ज़माने में होता है. they might have done that और wrong information मिल जाए या आप खुद ही बता दें कि देखो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लंबे हो गए हो, बाल बड़े अच्छे आ रहे हैं तुम्हारे, एकदम अडल्ट हेयर आ रहे हैं एंड आई एम इन लव विद योर बॉडी और अभी पेनिस भी बढ़ेगा और ऐसे वेट ड्रीम्स आएंगे, कभी कभी निकल जाएगा 3-4 दिन बाद अगर ऐसा होता है तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, दैट्स नॉट योर यूरिन एंड यू हैव टू टेल दैट इफ एंड you would want to explore because hormones are now changing, so you would want to explore your own body or you would feel attracted towards same age girls. That's absolutely normal. If you are masturbating, that is also normal. Don't be ashamed of it. So ये सारी बातें
बताएंगे नहीं तो उनको टैबू लगेंगी, वो छुप के करेंगे तो जरूर सब कुछ, है ना, तो वो छुप के करेंगे और वो गलत इन्फॉर्मेशन चाहे अपने पीयर ग्रुप से लेंगे या फिर आजकल तो गूगल ज्ञान है ही हमारे पास, तो उससे लेंगे। तो इससे अच्छा होता है कि आप खुद बताएं, देखिए आप बढ़ रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स बन रही हैं, ऑयल ग्लैंड्स बन रही हैं, ओडर एक आपकी बॉडी में स्पेसिफिक सी आ रही है, उसके लिए आपको डिओ यूज करना है, रोज नहाना है, हेयर क्लिपिंग करनी है। सो इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बेटर टू एम्पावर देम, that this is going to happen, and they should not feel ashamed of it, they should not feel bad about themselves. Yes. Wow. So in one question, actually, you've answered the most of the thing which I wanted to talk about. That it is very important for we as parents to talk. अगर knowledge नहीं है तो please लीजिए. मतलब I really tell parents also that if not us, then who? Always remember that question in your brain, that if it is not us, then don't tell that, मेरा बच्चा बिगड़ गया, my child is seeing porn, or for that matter, has gone into wrong websites because he was searching something else, he went something else, he was attracted to something else, and it just went out of proportion. So before that goes out of proportion, it's very important, and you're giving an enclosed environment where you can say that you can trust me, bachcha, it is okay. I am there on whatever happens, wrong, right, there's nothing wrong, there's nothing right, you're just exploring. And I'm loving what you're exploring. So something like that. So I think that was a perfect way I wanted to. I mean, you've answered my biggest query, which I usually get from parents. So also tell me something which is very concerning for parents who are girls' parents. So what are the main causes of early puberty in children today, and how can we actually maybe like 7-year-old, 8-year-old? I mean, that really breaks our heart, because when we see that, but how can we stop it? One, and why is it happening? Two. So both the things. So answer to both the subset of these questions is same. Why it is happening, and that's how we can stop it, if we can actually remove the cause of it. Correct. So to all the parents, and again I'm telling this to a parenting coach, which is like again irony, that okay, every parent knows that what is wrong. Okay, they know that their kid, as जैसे कल मुझे एक पेरेंट मिले जो बोले कि मेरी बच्ची सब्जियां तो खाती ही नहीं है और आज तक भी नहीं खाई. Okay, she is 16 and she eats non-veg and she eats all those things, but सब्जियां आज तक भी नहीं खाई हैं. तो डॉक्टर हम क्या करें? तो मैंने कहा कि आपने जो करना चाहिए था वो आपने किया नहीं. अब वो गलत है, हो सकता है स्वाति, मैं जो बता रही हूँ बहुत नहीं आप बिल्कुल सही बता रही हो, because I say the same thing. I don't sugarcoat. No, you say it. I told them that आपने थप्पड़ नहीं खिलाया उसको. नहीं, ये मैं नहीं बोलती. और मैं ये जरूर बोलती कि आपने गलत किया. Please stop it and just this is a boundary which you can just not cross. It is non-negotiable. भाई खाना है तो खाना है, मतलब क्या नहीं खाते. हमारे घरों में ये होता था कि अगर हमें जो चीज नहीं पसंद आती थी, सब बनी सबको है, सबकी कटोरी में सबको खत्म करनी है, चाहे वो कुछ भी है ना. तो हम लोग थोड़ा डरते भी थे कि अरे ताया जी के घर में गए हैं, नहीं खाएंगे तो मार पड़ेगी, खा के किसी तरीके से निगल के बस खत्म करते थे. दैट्स व्हाई वी डेवलप्ड और एक्वायर्ड द टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. तो अगर आपका बच्चा जंक खा रहा है तो पैसा कौन दे रहा है भाई? पैसा कौन दे रहा है? आपके पैसे से ही तो खा रहा है. आप ही दे रहे हो. आप ही तो दे रहे हो. If you are bringing मैगी, कोक, चिप्स, कुरकुरे घर पर, तो आपको कैसे लगता है कि वो नहीं खाएंगे? अभी घर में अवेलेबल है और आप अवेलेबल भी इसीलिए करा रहे हो बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट एंड यू फील कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड है या थका हुआ है या कह रहा है कि मुझे तो आज खाना ही है बर्गर या पिज्जा, तो आप यू आर बकलिंग डाउन. तो अभी ये तो स्वाति बताएंगे कैसे नहीं करना है इसको, कैसे इसको डील करना है. बट जंक फूड खाएंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स खाएंगे, तो ये जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं ये हमारा BMI बढ़ाते हैं. और बिलीव इट और नॉट, आजकल के बच्चे हम लोगों के जैसे बाहर खेलने नहीं जाते हैं जब तक कि धक्के मार के ना भेजा जाए. और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है. तो मेटाबॉलिज्म, पहले तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की पैकेटेड फूड खा रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो BMI बढ़ गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो अपने आप ही हार्मोनल एक्सेस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है. और स्क्रीन आप है तो स्क्रीन में छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है, सब है. तो अगर आप स्क्रीन ज्यादा देते हैं तब भी आपका मेलेटोनिन लेवल कम होता है और तब भी आपकी पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस जो है एक्टिवेट हो जाती है. तो इतनी ज्यादा ग्लेयर जो रोशनी दिमाग में पड़ती है उससे भी होता है. तो बहुत सारी चीजें गलत हुई कि खाना गलत खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोजर टू ईच एंड एवरीथिंग इज मोर. ओके, तो वो ये सारी ही चीजों के चलते प्यूबर्टी जल्दी होती है. लेकिन 8 साल से पहले होना इट्स प्रीमेच्योर. दैट इज एब्सोल्युटली. 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, इतना छोटा बच्चा होता है, उसको प्यूबर्टी हो जाए तो वो गलत है. तो अगर आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में नहीं डालते हैं तो भी गलत है. तो थोड़ा सा टाइम तो इन्वेस्ट कर दो. रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी बच्चा हफ्ते में 5 दिन तो करे ही.
So these are the causes, and if you can prevent these things, you can actually मतलब हम लोग कहते हैं कि साइकिलिंग खूब कराइए, स्विमिंग खूब कराइए, जितना फिजिकल एक्टिविटी लंबे टाइम तक चलता रहेगा उतना प्यूबर्टी लेट होती जाएगी। राइट, कम से कम 12, 13, 14 साल में आए, लेकिन 10 साल से पहले तो नहीं आनी चाहिए। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल, मोस्टली बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल। और हमने देखिए जो सब्जियों में जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसको तो कुछ नहीं कर सकते, जो हार्मोनल बन रही है या दूध है या सब्जी है, उसमें आप कुछ बहुत नहीं कर सकते हैं, मगर आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आप ऑर्गेनिक घर का खाना खिला सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं। पैकेटेड फूड अगर खिलाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट भी होता है, बहुत प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो वो सब कुछ बंद करिए आप। Right. So I was reading this article, Dr. Aruna, which made me realize. So I usually love these articles, and I make sure I make my children read it. There is a reason behind it. So I was reading the article that why is it important to read the label? Why? What is the concept of label? Label's concept is it tells you about the kind of ingredients it's using. Now, if it has got 10 ingredients, obviously children don't know the names. So I just circle those 4 ingredients which I want them to know about. And actually this parents can also do. So when they circle it and when they read about it and then they learn the repercussions of it and why is it happening, what is it happening, there are also ingredients which can cause seizures, which can cause brain problems, which can also have ADHD in kids. And we are consuming it on day-to-day basis. So when kids learn through just knowing that information, so it's very important that you transfer that information. सिर्फ अपने तक मत रखो, tell the children कि ये होता है बेटा, आप ये रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम लोग तो रोज ब्रैग करते रहते हैं, हम लोग रोज ज्ञान देते रहते हैं, वो नहीं जाएगा। When a third person is saying something, then it actually goes like a nail kind of a thing. So yesterday I was reading this article on fruity. जैसे kids love fruity. मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है fruity. Now yesterday she was learning that कितना percentage of mango is there, कितना percentage of food color is there, कितना percentage of sugar is there. Now she was saying, मम्मी आप कभी fruity मत लाना। So I was laughing. ऐसी कितनी सारी चीजें बेटा, one, but the problem is we are consuming on a day-to-day basis a lot of things which are literally shouldn't be consumed. Shouldn't be, yes, बिल्कुल। शुगर इज एब्सोल्युटली, शुगर चीजें बेकरी प्रोडक्ट इतना बढ़ गया है कंजम्पशन, उसको कम करना बहुत जरूरी है। वो उसमें बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक, लाइक आपको दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस ऐसी चीजें खानी चाहिए, या फिर चक्की का पिसा हुआ मोटा आटा, लेकिन हम बेकरी पे बहुत डिपेंडेंट हो गए आजकल। राइट, वेरी ट्रू। और बच्चों को भी इजी लगता है, पेरेंट्स को इजी लगता है, तो मतलब it is more on convenience than on just right. So tell me one thing, what is this PCOD and PCOS in simple terms? Because अब सब उसकी बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ भी होता है तो people say, oh नहीं मेरी बच्ची को शायद PCOD है, शायद PCOS है। So what is it in simple terms, like a layman language, not in a doctor language? I want you to explain me in a language where I can understand. And how can parents spot their early symptoms? ओके, तो सबसे पहली बात कि पीसीओडी और पीसीओएस एक ही चीज होती है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है इसमें। लेकिन पीसीओडी को अगर हम सिर्फ डिटेल में बोले तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट मतलब एग्स, एग और ओवरी में हो गया। तो जब ओवरी में बहुत सारे एग्स दिखाई दे रहे होते हैं तो उसको पॉलीसिस्ट कह दिया। अब वो जो सिस्ट है वो फॉलिकुलर सिस्ट है, जो एग्स हैं, जो हमारे खुद के एग्स हैं, अगर वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर महीने जो एक एग बाहर निकलना चाहिए पीरियड से पहले वो नहीं निकल रहा। तो अगर वो एक महीने का नहीं निकला, दूसरे महीने का भी नहीं निकला, तीसरे महीने का भी नहीं निकला, तो वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, अभी मेच्योर एग्स इकट्ठे हो गए हैं। सो एवरी मंथ इफ समबडी इज ब्लीडिंग ऑन टाइम, 28 से 30 दिन के साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो एग जो मेच्योर हुआ वो बाहर निकल आएगा, देन इट विल डिसअपीयर, देन इट वुड नॉट बी सीन। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग योर पीरियड्स फॉर से 3 to 6 months, तो उस सभी के सब डोमिनेंट एग्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 6 इकट्ठे हो गए। अब वो जब अल्ट्रासाउंड किया तो वो दिखाई दे रहे हैं हमें, तो उसको जो है फिर बहुत पॉलीसिस्ट बोल दिया। लेकिन वो सिस्ट नहीं है, वो आपके खुद के एग्स हैं जो कि बढ़ते बाहर नहीं निकले, ओवुलेट नहीं हुए और सिस्ट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है, जिस सारे के सारे जो एग्स होते हैं उनका पेरेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, और जब वो बाहर निकल जाते हैं या ओवुलेशन हो जाता है या पीरियड्स के वक्त जब निकलते हैं तो वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में ब्रेक हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर ओवुलेशन ही नहीं हुआ, पीरियड ही नहीं आए, तो वो टेस्टोस्टेरोन ही बना रहा है, पेरेंट हार्मोन में ही बढ़ा रहता है। और जब वो पेरेंट हार्मोन बढ़ जाता है बॉडी में तो फिर हमें फेशियल हेयर, एक्ने, स्कैल्प हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाता है, और पेट पे ओबेसिटी आना शुरू हो जाता है। तो इट्स लाइक बिकॉज वी नो दैट इफ ओवुलेशन वुड हैव हैपेंड, अगर पीरियड्स आ जाते तो वही टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फेमिनिन हो जाता, फेमिनिन हार्मोन हो जाते। अब नहीं हो रहा तो वो हो गया। अब ये है कि अगर ओबेसिटी भी उसकी वजह से हो रही है तो ओबेसिटी के और ये सारी चीजें मोस्टली इस वजह से होती है कि आपका बीएमआई हाई है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो वो एक विशियस साइकिल के, पहले आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं था
और फिर ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, फिर और ओबेसिटी हो गई, और अब बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग यू आर नॉट एबल टू मेटाबोलाइज योर फूड प्रॉपर्ली, तो इंसुलिन भी बढ़ गया। तो ये एक साइकिल सी चलती है। जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो उसको पीसीओएस कह देते हैं, क्योंकि उसका मतलब है कि अब आप प्री डायबिटिक भी हो गए। तो वो सारी चीजें कि डी से एस बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये है कि पीसीओडी ओबीस में भी होता है, तो थिन लड़कियों में भी होता है, कई बार जेनेटिकली मां से आ जाता है, और कई बार फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल भी नहीं होती, इवन इफ यू आर नॉट ईटिंग वेल बट यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव, एंड दैट्स व्हेन आल्सो आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो फिर भी आपको पीसीओडी हो जाता है। अब सिंपल सा बात है कि हमें जब पता है कि ज्यादातर लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से होता है, और दूसरा रॉन्ग ईटिंग हैबिट से होता है, तो हम उसको करेक्ट करेंगे तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो यंग बच्चों की मदर्स होती हैं, जैसे कि मेरी बेटी को 14 साल पर पीरियड्स नहीं आए 3 महीने तक, और उसको 12 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो गए थे। तो अब हमें ये समझना है कि शुरू के 3-4 साल तक तो ब्रेन और ओवरी की एक्सेस सिंक हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है। तब तक अगर नहीं भी आते हैं तो इतनी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। फॉर 3 इयर्स इफ 1 महीने पे आ रहे हैं तो भी ठीक है, 2 महीने पे, 3 महीने पे नहीं आ रहे 6 महीने तक तो भी ठीक है, बट यू हैव टू गेट हर हीमोग्लोबिन एंड थायराइड चेक, दैट शुड नॉट बी द प्रॉब्लम। मगर वंस शी इज लाइक शी हैज क्रॉस 3 इयर्स पोस्ट मिनार्की, 12 साल की थी आया 15 साल के बाद भी अगर हुए जा रहे हैं, देन वी शुड बी अलार्म्ड फॉर 2 रीजंस। कि जब मेरा बच्चा बढ़ रहा था तो क्या उसका बीएमआई भी बढ़ता जा रहा है, और अगर बीएमआई बढ़ता जा रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कब वो नॉर्मल जो हम कह रहे थे कि डेवलप नहीं हुई अभी तक पिट्यूटरी और ब्रेन और ओवरी, कि वो कब अब नॉर्मल पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीसीओडी शुरू के कुछ सालों में नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन और ओवरी की एक्सेस अभी सिंक में नहीं हुई है। Got it. मगर आफ्टर फ्यू इयर्स अगर सेम साइकिल 3 महीने 6 महीने नहीं आ रही है, तो फिर आपको समझना है कि नाउ बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल और बिकॉज ऑफ हाई बीएमआई, बिकॉज ऑफ नो फिजिकल एक्टिविटी, शी मस्ट हैव एंटर्ड इनटू द ब्रैकेट ऑफ पीसीओडी नाउ। Wow. लेकिन एवरी अल्ट्रासाउंड व्हेन यू सी एंड सी के अच्छे बहुत सारे एग्स दिखाई दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वाले ने लिख दिया कि पीसीओडी मतलब सस्पिशियस ऑफ और क्वेश्चन मार्क पीसीओडी, बट देन यू हैव टू सी कि यार मेरी 12 साल की लड़की कैसे पीसीओडी हो सकता है, उसका तो सिंक ही नहीं हुआ अभी, है ना। तो वो यू हैव टू सी के जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट एन अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड इज शोइंग, वी गिव जस्ट 30% वेटेज टू अल्ट्रासाउंड, बाकी 33% सिम्टम्स को, साइंस को और ब्लड टेस्ट को देते हैं। वाओ हाँ, ये आप मेरे को पहले भी बता रहे थे कि लोग आजकल अल्ट्रासाउंड पहले करवाते हैं। व्हेन आई टोल्ड यू अल्ट्रासाउंड करवाना है, आपने बोला चुपचाप बैठ जाओ, भी नहीं करवाना। बट आई रियलाइज दैट बिकॉज़ व्हेन यू एक्सप्लेन मी दैट वेल, इट मेड मी रियलाइज आई शुड नॉट रिलाई ऑन अल्ट्रासाउंड, बिकॉज़ आई वाज आल्सो हियरिंग फ्रॉम एवरीबॉडी, यार अल्ट्रासाउंड करा लेना अगर तेरे को डाउट है तो। बट देन दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट द राइट सिग्नल, दैट विल नॉट टेल यू वेदर योर चाइल्ड हैज पीसीओडी और नॉट, तो दैट डजंट मेक सेंस। और एक तो बच्चों को ना प्रोबायोटिक अच्छे से देना चाहिए, वो भी एक गट के बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दैट इज आल्सो कॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ जंक फूड गट बैक्टीरिया खराब हुआ और इकोसिस्टम खराब हुआ, एंड यू हैव टू गिव गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक टू योर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पीसीओडी, at least to girls. Got it. So tell me about this. How much does persistent acne in teens relate to hormones and underlying gynecological issues, if that is the question? So PCOD and acne was related, you said, right? Now और भी ऐसा कुछ होता है with persistent acne, या फिर skin person को दिखाना चाहिए, या मतलब I'm trying to understand because acne is something we hear it normal in girls or in children. Boys also. Boys का तो पूरा दिखता ही है openly. तो मतलब is that really an internal issue or an external issue? So I'm just trying to understand that. सो फर्स्ट थिंग इज कि जब बच्चे बड़े होते हैं, जब प्यूबर्टी उनको हिट करती है, तो बॉयज़ का भी हार्मोन्स लेवल बढ़ते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही। अब जैसे बॉयज़ का टेस्टिकुलर हार्मोन से आ रहा है तो गर्ल्स का ओवरी में आ रहा है, लेकिन दोनों की एक और ग्लैंड होती है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, जो किडनी के ऊपर छोटी छोटी कैप के जैसा पड़ी होती है, और वो भी एक्टिवेट हो जाती है जब प्यूबर्टी होती है। तो अगर फीमेल्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं है, एड्रीनल ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है फीमेल्स में भी, और मेल्स में तो है ही टेस्टोस्टेरोन। तो प्यूबर्टी में अगर मेल को एक्ने हो रहे हैं तो फिर उसको थोड़ी ना पीसीओडी बोला जाएगा, तो फीमेल को अगर एक्ने हो रही है तो पीसीओडी ही क्यों है, उसके भी तो एड्रीनल ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है ना, तो वो भी हो सकता है। एंड देन यू हैव टू टेल देम कि ऑयल ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो चुकी हैं। अभी तक जब तक वो छोटे बच्चे थे तब तक बिल्कुल नाइस क्लीन स्किन हुआ करती थी, सॉफ्ट स्किन होती थी, लेकिन अभी अचानक से वो एक्सिलरी है, प्यूबिक हेयर और ऑयल ग्लैंड्स वो सब एक्टिवेट हो गई। तो नहाओगे नहीं, दिन में 2 बार नहाओ, अच्छे से फेस वॉश करो, नहीं तो वो सारा इकट्ठा हो जाता है ऑयल उनसे, तो फिर भी एक्ने होंगे, टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ ही रहा है। तो एक्ने इज अ वेरी नॉर्मल प्यूबर्टी की प्रॉब्लम, और मोस्टली वो अगर आपके पीरियड्स, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 2-3 साल हुए हैं प्यूबर्टी हुए हुए या पीरियड शुरू हुए,
हुए, तो आपको पीसीओडी की तरफ जंप नहीं करना चाहिए. दैट कैन नॉट बी अ रीजन ऑफ एक्ने, बट सिंपल एक्ने ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा. मतलब जो वो एंटीबायोटिक देंगे और जो ऑइंटमेंट देंगे. मगर अगर आपका बीएमआई गड़बड़ है, अगर आप एक्चुअली ओबीस हैं, तो फिर और 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको पीरियड शुरू हुए, तो फिर हमें चेक करना ही पड़ेगा कि कहीं हार्मोनली, और until unless hormones suggest that you have PCOD, don't jump on this diagnosis just on the basis of ultrasound or acne or other symptoms, because बहुत सारे symptoms puberty में normal होते हैं. बहुत लोगों को थोड़ा बहुत फेशियल हेयर भी होता है. कई बार तो मैंने ये देखा है कि बच्ची को बचपन से ही थोड़े एक्स्ट्रा हेयर हैं, मगर माँ को प्यूबर्टी पे आते ही बस एकदम अलार्म्ड हो जाती है कि अब हुए, एंड देन दे जस्ट फॉरगेट, दे जस्ट डू नॉट वांट टू एक्नॉलेज कि ये तो पहले से ही थे. Right. Yeah, absolutely. So tell me one thing. When do you think a girl should come to a gynecologist? A teenage girl, or probably, I'm talking about post periods. Do you think that the girl should visit a gynecologist, or when is the right time, or why and how can we meet, that kind of thing? Okay, so as we know, Swati, that हमें एक तो HPV का वैक्सीनेशन भी आजकल 15 साल से पहले लगवाना होता है. Correct. और 14-15 साल की बच्ची जो है वो काफ़ी समझदार होती है. और क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड हम खा रहे हैं, तो हमें ब्रेस्ट की डिजीजेस भी बहुत कॉमन हो गई है. एंड व्हेन आई सी ब्रेस्ट की डिजीज, आई एम वेरी इट्स वेरी सैड टू शेयर विद यू दैट गर्ल्स एज यंग एज 16 years old girls are also developing many preliminary changes of breast cancer and all. तो अगर किसी को ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो चुका है, तो हो ही चुका है 15 साल तक. तो अगर अदरवाइज भी अगर किसी को 15 साल तक भी, या इनफैक्ट आई वुड से कि 12 साल तक ब्रेस्ट बड नहीं डेवलप हुई, तो उसकी माँ को लेके आना चाहिए. और 15 साल तक पीरियड्स नहीं शुरू हुए तो भी लेके आना चाहिए. तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई. बट अदरवाइज लड़कियाँ 15 साल पे काफ़ी मेच्योर होती हैं. उनको उनका हीमोग्लोबिन चेक करना, थैलेसीमिया प्रोफाइल होना, थायराइड प्रोफाइल होना, ये सारा कुछ कराना चाहिए. विटामिन डी देना है, B12 देना है, क्योंकि डाइट बच्चों की अच्छी भी नहीं है, और दूसरा पढ़ाई के बच्चे हैं तो ग्रोइंग एज है. तो वो तो देखना ही है. मगर उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाना है, या वो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो हम लोग सिखाते हैं कि देखो ऐसे दे, एंड आई एम लाइक सरप्राइज्ड टू सी दैट दे themselves are really interested in their body, and that is a absolutely right thing to do. और क्योंकि वो खुद ही कई बार तो उतनी छोटी बच्ची भी आती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट में लंप है, तो उसको समझा दिखाना पड़ता है कि ये आपकी ब्रेस्ट की नॉर्मल टिश्यू का फील है, बट इट्स गुड दैट यू हैव कम, एंड नाउ यू शुड लर्न व्हाट इज द नॉर्मल फील. एंड इफ यू डू एवरी मंथ पोस्ट पीरियड, you know about the consistency of your breast, feel of your breast, and every month when you are doing, immediately if there would be something new development, you would catch it and come back to us. So उनको वो breast self वो examination सिखाना होता है. And again, if you are a parent who wants to live in that bubble that your girl would not go and explore any other boy or something, again, see, we want to believe that our kids are innocent, and that they are innocent. Even when they do these things, they are still innocent. Their hormones are playing, okay? But until unless you empower them, तो फिर गड़बड़ तो वहाँ पर ही शुरू होता है. Because you have to, and believe me, once you tell them that, see, if this kind of situation happens, because we have good schools nowadays, and the teachers are also not very very strict about them. When boys and girls are sitting in corridor or bunking class and sitting, many schools, they just, teachers are like, okay, when they are free, then when they have free period, they're just sitting, nobody is going to moral policing to them. तो वो होता है. और अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि देखो ऐसा है, इस सिचुएशन में कैसे, what is sex, and you don't have to actually explain the whole sex thing. It's just that they would be just kissing or they would be doing, उनको बताना होता है कि ये सेक्स होता है. आप शायद you would be attracted to a boy, you have to, if it is like that, come discuss with me, I'll tell you safe tools about it, how to go about it and all those things. And you should not be afraid of doing it or talking about it to me. आप जैसे empower करते हैं ना, वो करते ही नहीं है. वो सोचते हैं कि यार ये तो कोई forbidden fruit ही नहीं है, ये तो बता ही दिया. तो ये चीजें अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो that's absolutely okay, but then you should put that faith in your gynecologist that she would be telling with too much of neutrality कि भैया ऐसे ऐसे होगा बेटा जी, कोई नहीं. क्योंकि हम लोग रोज देखते हैं, अब 16 साल की लड़की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शन से आ रही है, मदर आती है, एक बार आई, 2 बार आई, तीसरी बार में वो हमें ही गुस्सा हो जाती है कि व्हाट इज दिस, मेरी डॉटर का ठीक ही नहीं हो रहा, आप कैसे ट्रीट कर रहे हो. तो फिर अब हम, दिस इज दो शी इज लेस देन 18 years of age, बट पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तो होती है ना. हमें तो पता चल गया था देखते ही कि शी इज सेक्सुअली एक्टिव. आई वुड हैव बिहाइंड द कर्टन आस्क्ड हर दैट, सी यू आर सेक्सुअली एक्टिव, व्हाई डोंट यू टॉक टू योर मदर, इट्स नॉट राइट कि मैं उसकी स्कोल्डिंग सुन रही हूँ तुम्हारी माँ की. एटलीस्ट यू शुड शेयर दिस थिंग, अदरवाइज इफ आई शेयर शी वुड फील she would feel good, है ना.
तो वो जो है गेट इनटू डिफेंसिव मोड, नहीं आपको नहीं पता, हाँ यू आर ओवरथिंकिंग। हाँ तो आप खुद बच्चे को हमें कहना होता है, देखो अगर मैं पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रख रही हूँ तो आप प्लीज अपनी मम्मा से डिस्कस करो, मेरे सामने कर लो डिस्कस। तो आप अगर एक ऐसी माँ हैं जो कि ओपन है अपनी बिटिया से, और वो डॉक्टर के पास लेके आके कहती है कि डॉक्टर आप समझाइए, और उसी मेरे सामने बोलती है कि मैं बाहर जाती हूँ, जो भी ये पूछना चाहे आराम से सवाल समझाइए, आपको जो लगता है आप बताइए। सो दैट है ना, सो दैट थिंग इज दैट फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी कंफर्टेबल। आपको अरे पता नहीं क्या डॉक्टर सिखा रही है, क्या पट्टी पढ़ा रही है, वो सिखा देगी कि सेक्स क्या करना होता है और कैसे करना होता है, कैसे क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना होता है। मेरी 16 साल की बच्ची को कॉन्ट्रासेप्टिव सिखा देगी तो वो जाके कर ही लेगी सेक्स। सी इट्स नॉट कि इफ वी आर गिविंग परमिशन, दे थिंक कि ये तो कंसेंट ही दे दी इन्होंने। तो ये चीज मेरे ख्याल से 15 साल की बच्ची जैसे ही होती है उसको जाके और उसकी खुद की गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। और मेरे पास जब भी बच्ची आती है, कभी बाहर जा रही है कॉलेज, यूएस जा रही है, तो मैं कहती हूँ अब मम्मी से पूछने की जरूरत नहीं, यू हैव माई नंबर, यू कैन ऑलवेज डिस्कस थिंग्स विद मी इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद योर मॉम। तो वो होना है। और बॉयज को नोबडी नोज अबाउट कि बॉयज का डॉक्टर कौन होता है। अगर बॉय को तो बॉयज को भी तो हमें देखिए, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसलिए नेग्लेक्ट होती हैं क्योंकि आपने बॉय के साथ बात ही नहीं की कि ऐसा है। अगर उसको अगर वेट नाइट्स हुई थी और अगर आपने नहीं बताया था तो वो ये भी तो डर सकता है कि उसको शायद यूरिन की कोई प्रॉब्लम है। ऐसा ही अगर वहाँ पे कोई रैश हो गया, अगर वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो गई तो उसको लगेगा शायद ये भी नॉर्मल है भाई, जैसे टेस्टिकल का साइज बढ़ा शायद स्वेलिंग ये भी हो सकता है, वो कुछ अब नॉर्मल स्वेलिंग हो सकता है वो कैंसर हो। आपने कभी बताया ही नहीं उसको कि क्या है, बात ही नहीं करिए। तो वो धीरे 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 जब एक्चुअली तकलीफ में आ जाएगा, बढ़ जाएगी, तब आपको आके बताएगा कि मुझे ऐसा हो गया, और बाय द टाइम इट वुड हैव बीन ग्रोन। ठीक है, तो आपको बताना तो है ही, लड़के से बात करनी है, फादर नहीं कंफर्टेबल है माँ बात करे। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी कोई भी कंफर्टेबल नहीं है तो फिर यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बॉयज के डॉक्टर्स होते हैं, उनको जाके फिर दिखाइए कि भाई इनसे बात करें। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। हाँ नहीं आई थिंक मतलब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट अगर ये तो हमारी गर्ल्स की बात हुई, बॉयज एंड यू सेड दिस, सो आई थिंक यू रेड माय माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सन्स ओनली। सो हाउ शुड पेरेंट्स अप्रोच कन्वर्सेशंस अबाउट प्यूबर्टी विद देयर सन्स, बिकॉज़ पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल। I know parents are not comfortable at all and they should first understand. पेरेंट्स बात कर लेते हैं, बॉयज के पेरेंट्स बात नहीं करते, क्यों नहीं करती तो मेरे को बात ही नहीं समझ में आई। मतलब दैट इज सो अननेचुरल। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि शायद बॉयज ज्यादा बोलते नहीं हैं या शेयर नहीं करते हैं, लड़कियां कर लेती हैं। मगर आप वन वे कॉन्वर्सेशन तब तक करते रहिए जब तक कि टू वे शुरू ना हो। क्योंकि जब तक आपको लगता है कि भाई मैंने आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, हफ्ता हो गया मैं रोज बोले जा रही हूँ, मगर आइस ब्रेकिंग तो कभी ना कभी होगी। और अगर आप मतलब बच्चा पल ही ऐसे रहा था कि वो शेयर पहले से भी नहीं कर रहा था छोटी छोटी बातें, तो अब क्या करेगा, या तो वो शेयरिंग वाली रोज की बात होनी ही चाहिए। जब वो छोटा था तभी से होनी चाहिए। तो वो जब बड़ा हुआ तो वो खुद नहीं पूछ पा रहा था, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही वो बड़ा हुआ तो अगर उसके बाल आ रहे थे और वो शॉर्ट्स से पैंट्स में आ गया या टी शर्ट नहीं उठा रहा था तो आपने क्यों नहीं बात की उससे कि इट्स ओके। सो इफ वो वहां पे ही कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा और आप उसको करा भी नहीं रहे कंफर्टेबल फील। तो और अगर देखिए फादर्स को वैसे करना चाहिए, बट आजकल के फादर्स आई थिंक दे आर रियली फ्रेंडली विद देयर बॉयज एंड इट्स गुड टू डू। बट दैट्स अगेन एवरीथिंग इज इफ दे आर फ्रेंडली। जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा अगर बाथरूम में ज्यादा देर तक है तो आई शुड नॉक एंड आर यू ओके, इफ यू आर मास्टरबेटिंग ओके गो ऑन, बट आई वाज जस्ट टेलिंग दैट डिनर इज लेट। So I mean, I wish I could have a conversation like this with my son. You would be able to. You are a good parent. I'm telling you, you know parenting, and I don't know if it is wrong or right. You should tell me whether it's wrong or right, because as I said कि as a parent मैं 2 बार parent बन गई मगर मुझे हर बार लगा कि पता नहीं है ये तो कोई गाइड बुक है ही नहीं इसकी, तो it's very difficult. But I just want to, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि बस कुछ ना कुछ बात करती रहूँ जिससे कि जो भी awkward topics हैं वो awkward ना रहे। नहीं बात करना तो डॉक्टर, I think it's very very important because I took that opportunity to talk to Ashwika when Ashwika asked me a very it was as for me it was a very normal question. She asked me what is rape because उस समय उसने कोई न्यूज़ पढ़ा and I took that opportunity to explain what is what about sex, about things, about contraceptive actually, what is what is why is a female and male. So we spoke about everything. We spoke about for 1.5 hours. But when she came out, she had in her face, I could feel there was a satisfaction. That okay, now I am more knowledgeable for that matter, or might be, oh, I did not know this. So I mean there was a sense where I could feel that she realized that, oh, I can go to my mom, she's chill, she knows it. So that anchoring is also very important, that children need to know that you're an anchor. You're the right. See, अगर आप नहीं बताते हो और तो वो जान फिर भी लेंगे, वो तो है ही फ्रेंड्स है ना, वो फिर गलत फिर वो गलत जान लेंगे। हाँ, तो वो जो गलत ना जाने इसीलिए आपको सही बताना है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं चलेगा, रॉन्ग सोर्सेज से पता चलेगा, रॉन्ग थिंग पता चलेगी,
तो उनका नुकसान ज्यादा होता है, तब उनका नुकसान ज्यादा। हाँ, because she came out with, अच्छा मेरी friend ने ये बोला था, but she had all the information. There was nothing which she did not know. But when I opened myself, then she told about 3 friends. इसने ये बोला, इसने ये बोला. Then I got to know the whole thing कि ये आया कहाँ से. Because obviously if I started, that means I shared my secret. Then she was easily able to share her heart because it was easier. So, which comes to a very important question, which I mean, get it most of the times. So, can you explain me the pros and cons of menstrual cup, tampons, disposable pads, reusable cloth pads? Because this is a सबसे बड़ा thing about, you know, environment में हम एक तरफ जाते हैं, then we get confused, then we think about children, then we get confused, then we think about what should we give. So it's a very typical question, and unfortunately, I never have an answer which I can share it with my parents. And I really want you to break the whole myth or bust or what you feel and what is the right thing actually. Okay, so जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं पेरेंट्स के, जो पेरेंट्स आते हैं उसमें ये होता है कि रैश हो गया है पैड लगाने से, और मेरी बच्ची तो मतलब वर्जिन है तो टैम्पन्स तो कैसे यूज करेगी, तो या मेंस्ट्रुअल कप कैसे यूज करेगी। तो सभी पेरेंट्स के लिए है कि ठीक है, पैड्स अभी तक हम यूज़ करते थे, और क्योंकि वो थोड़ा खिसक जाते हैं और हमारी बच्चियाँ, वी वांट देम टू बी एथलेटिक एंड वी वांट उनको, मतलब पैड से थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। हम लोगों ने तो अपने ज़माने में वो कपड़ा ही यूज़ किया था बहुत काफ़ी टाइम तक, और धोया था उसको और सुखाया था और फिर आयरन किया था, जो कि आजकल फिर से आ गया है। बट उसका सिर्फ वही, जैसे हम लोग के ज़माने में होता था तो हमें काफ़ी खराब लगता था, उसकी एक स्मेल आना शुरू हो जाती थी कपड़े में से, वो ब्लड का स्मेल भी बहुत मुश्किल से जाता था। अभी वो अच्छे क्लॉथ का है और वो है, बट ओनली इफ यू फील दैट दे आर अडल्ट इनफ टू क्लीन दैट नाइसली, वो ब्लड निकल जाए, उसके बाद फिर धूप में सुखाना है, फिर आयरन भी करना है कि कीटाणु भी और स्मेल भी निकल जाए, तब तो वो रीयूजेबल क्लॉथ हो गया। अदरवाइज टैम्पॉन इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जब कोई बच्चा स्विमिंग करने जा रहा है या कुछ बैडमिंटन क्लास है या कोई भी ऐसी एथलेटिक एक्टिविटी में है तो वो यूज़ करे। बट एज अ मदर यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर दैट दे चेंज आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स, 4 घंटे 6 घंटे बाद करे, क्योंकि अगर वो अंदर रह जाता है तो वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या बहुत ज़्यादा पेल्विक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मेंस्ट्रुअल कप, अगेन वेदर इट्स टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप, वर्जिनिटी का कोई लेना देना है नहीं उससे। हर एक का हाइमन इतना टाइट नहीं होता कि वो ना जा पाए, और बच्चे की कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप के साथ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, लाइक वेदर यू वॉन्ट टू स्विम, वेदर यू वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग है और टेनिस है, सब कुछ कर सकते हो। मगर दोनों के लिए एक नैक चाहिए, थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए, और मेंस्ट्रुअल कप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दी place where you can use, like if you are coming home you can clean nicely and everything, but if you are not somewhere around home तो फिर शायद आप उसको सुखाएंगे कैसे, धूप कैसे लगाएंगे, है ना, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सीखने में तो इट वुड टेक हार्डली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ट्रायल एंड एरर होता है कप का, और अगर टैम्पॉन भी किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं भी आता है, बट हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, अगर आपको पैड ही पसंद है, जैसे other day same topic I was discussing in one of the school, and after I finished this topic, principal said that okay, nothing doing, everybody would use pads only, and nobody is going to ask their parents about any other thing or tell them or share with them that this was discussed. And I was like, okay, you should have told me कि ये नहीं करना है या कुछ। तो इसका मतलब कि many people are themselves are not very comfortable कि अरे वर्जिन वजाइना में टैम्पॉन कैसे, वर्जिन वजाइना में कप कैसे, तो पैड ही ठीक है बस जो है। तो वो पैड वाला जो एक कंफर्ट है जो अभी तक है सबको कि नहीं वही ठीक है। मेंटल कंफर्ट है, मतलब वो फिजिकल कंफर्ट नहीं है, because I've been using menstrual cup for like 6 years. After Ribhav, actually before Ribhav I started, and after Ribhav I used for 5 years. Obviously after that I did not need to use it, but it was very comfortable. I used to feel that it is the most easiest thing. मतलब my menstrual cycle, obviously you know I had fibroids, I had issues and stuff, but still for me menstrual cup was a blessing, because I realized that it is making my life more simpler in terms of what I wanted to do. I could do it very simply. और उसके साथ मतलब इतना मेंस्ट्रुअल कप के साथ you can have sex also, but again it is not about young girls. But again I would say that if you have a 17-18 years old girl and if you think that they are not sexually active, तो भी गलत है। तो but again I'm not menstrual cup is about us, if I'm talking about a young people, वो भी थोड़ा सा आसान हो जाता है कि that's also not a problem. But हाँ, ये है कि ये this is like very personal choice. साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि भाई अगर आप पैड यूज करते तो रैशेज हो जाते हैं, तो थोड़ा वेजाइनल वॉशेस बिल्कुल मत यूज करिए, क्योंकि ऑलरेडी वेजाइनल वॉशेस से आपका वो बैक्टीरिया जो आपका हेल्दी बैक्टीरिया है वेजाइना का वो मर जाता है एंड यू आर प्रोन, और वो पैड लगाने की वजह से और रैशेज और वो वहाँ पे स्वेट होता है तो
और इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं. Correct. टैम्पॉन का है कि इफ यू फॉरगेट टैम्पॉन फॉर मेनी आवर्स इट्स अ really really bad side effect, which is pelvic infection, severe pelvic infection. Cup Right. ka also, if it spills, if it's of no size, is not fitting you properly and you're not comfortable. Sometimes girls have tight vagina or tight this thing and they're not able to pull it out, break the vacuum. Then again, if it is not, after many trials and errors, if you're not comfortable, that's okay, you should not be using. And if Right. you are actually environmental friendly and you cannot use cup, then go for cloth reusable panty or reusable this thing. Got it. So I think initial few years when the child is getting her first cycle, I think during that time, you rightly said, after 3 years, I think, मतलब जो use करने में comfortable है या मतलब pad use करने में comfortable, whatever they are convenient in using, मतलब वो use करो, मतलब don't take pressure कि ये करना है वो करना है. But probably after they are little relaxed with अच्छा ये ऐसे ही होता है, menstrual cycle ऐसे होते हैं ना, then we can introduce them to different thing, whatever suits best, then use that. So nothing comes, I think, on a day or something. It is tailor made. It is always tailor made. Like if your girl is a swimmer and she's a national level swimmer at the age of say 13 or 14 and she got her periods around 13 years of age, would you not want her to go to national competition? Then you would tell कि अरे tampon use करो, उसके हिसाब से थोड़ा ना डेट चेंज हो जाएगी स्विमिंग का. Correct. तो उसको बोलो कुछ नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, tampon use कर और जाके अपना टूर्नामेंट करके आ. That is a smarter thing to do, actually. Wow. So that finishes our question, because my next question was on vaginal washes, which you already said. So I think we are done with our questions. But I have something interesting rapid fire round for you. So I have listed down just 5 to 6 questions, maybe 10 actually. So, but it's fun. I mean, I want you to talk. Basically, you talk directly, dil se, so that I don't have to tell you. But yeah, this is something we want to know about you. So, coffee or tea after a long OPD? Oh, coffee. Okay. What is morning tea? Morning tea, first thing in the morning. So you tea, coffee, both person. That's nice. Oh yes, morning tea, 4:30 I make my own tea, and evening as soon as like running OPD or after the end of OPD, coffee. Oh wow. So what is always there in your bag? In my bag? Yes. The one thing you can't just stay away with. I think my specs. Your specs, nice. Something interesting. I expect something witty from you. Actually, see, I'll tell you one thing, Swati. I hate bags and I would want to go bagless. मुझे लगता है कि लड़के कैसे करते हैं, तो मुझे मैंने आपको तो कभी बैग में देखा भी नहीं है. देखा ही नहीं, तो मुझे मेरे फोन में जीपे होना चाहिए और मेरा फोन चार्ज होना चाहिए. And I just want my phone and वो एक sling bag से टंगा के. I don't want to carry anything. I don't want to carry bag at all. Yes, one, and that again is not interesting. I have to have my book which I'm reading. That is my companion. अगर वो रह जाता है, मुझे लगता है मेरा 2 बेस्ट फ्रेंड घर पे रह गया, इसके बिना मैं कैसे करूंगी. तो वो चाहे मैं 1 पेज पढूं, आधा पेज पढूं, but that book should not be left at home. Wow. How's your book doing? I'm sorry, we forgot to mention about your book. So Aruna ma'am has written an amazing book. I want you to tell about that book actually. So the title is a little sarcastic. Yeah. It is like, I want a boy. And it is like, okay, why everybody wants a boy as their firstborn or secondborn, or a baby boy for Indian mindset, societal pressure. So, and these are all stories from my heart, and these are stories of my patients, which I've been writing for more than 20 years now. Some government patient story, some corporate hospital story, a 2 or 3 pages story, and every story is a real patient. And that is why when I was writing these stories, I cried a lot. Expressions are really, really very honest. And every time when I read, because that patient again comes to my mind, I had seen that patient for many years in OPD, or she was in my hospital for 9 months with me. And every time I cannot read the end aloud because I start crying. So this is these are all stories, and I think it's getting a very good response, because as soon as anybody starts, they cannot put the book down, because every story is so interesting and everybody wants to know, okay, what happened next story must be better than this or something. That's amazing. And it, because it has MBBS years, post graduation, so you get the glimpse of a doctor's life, how what was the preparation for entrance exam, and what was MBBS years, and what was post graduation years. So you get that glimpse also, and it keeps you hooked. So it's wow. So who should read it? Is it your parents should read it, patients should read it, doctors should read it? Who should actually read it? I think it should be read by everyone, because if boys, parents, whether it's a father or a mother, everybody should read Dadi, Nani. Why? And doctors should read it, because every doctor, every gynecologist, I must say, encounters these kind of stories. But why only I could read?
because I could connect with each and every patient. Wow. Okay, so somewhere when many of my colleagues from very very far away from different states, they have read the book and they call me and they say कि हम तो रोज देख रहे हैं मगर हमने कभी ये सोचा नहीं कि लिख सकते थे, इसमें इतना दर्द है, इतनी मार्मिकता और इसमें दर्द है. तो वो चीज जो है कहीं आपको जब तक हिट नहीं करती ना, आप लिखते नहीं हो. तो वही चीज वो पढ़ रहे थे, वो रोज पेशेंट देखते हैं मगर जब पढ़ा उन्होंने तो उनको एक अलग ही दर्द फील हुआ उसका. Wow, that's so beautiful. So now, most unforgettable patient moment. Most unforgettable. So for you, I think all patients are very favorite because इतने अच्छे. all of them. So मेरे ख्याल से मेरा कोई भी ऐसा, मतलब मैं इतना ज्यादा सबके साथ फैमिली बन जाते हूँ कि मुझे अभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत फेवरेट है या every patient is so favorite to me. But I would say one patient, if I have to choose out of amongst them, I won't remember the name of that person, the father. And it was very long back when I was getting all these stories. ये फादर था जो कि सेकंड डॉटर होने पर इतना सेलिब्रेट किया उसने हॉस्पिटल में, और उसने कहा कि मुझे चाहिए ही थी सेकंड डॉटर, मुझे चाहिए ही थी सेकंड डॉटर. और जबकि मुझे पता था कि बाहर उसके मम्मी, उसके सास ससुर, सब एवरीबडी वाज वांटिंग अ बॉय, बट ही वाज सेड कि ये कहते रहे कुछ, मुझे तो एक भी बेटी चाहिए थी, दूसरी भी बेटी चाहिए थी. और अगेंस्ट नथिंग अगेंस्ट बॉयज, इट्स जस्ट दैट कि ही it's a mindset, is that he wanted girl and he got the girl and he said कि I do not want कि मेरी बीवी ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया इतनी लेबर के बाद, और मुझे तो बेटा बेटी में तो खैर कभी कुछ फर्क था ही नहीं, मगर मुझे अपनी बेटी के लिए दूसरी बेटी चाहिए थी क्योंकि दो डॉटर्स एक अच्छी पूरी जिंदगी भर के लिए दोस्त रहती हैं और माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखती हैं. Great thing. How sweet. So what is that one health product you absolutely recommend? Health product which I recommend. So again, I am not very fond of anything. Like I don't take tablets, I don't take supplements. Wow. I hardly have anything in my on my dressing or in my bathroom. Vitamin D. Yes, you reminded me. Vitamin D. I take that is the one thing which I remember now. Ki on my dressing table, that is the one thing which is there. Yes, weekly vitamin D I take. That is absolutely must. Otherwise, I totally believe on everything which is natural, like lots of dry fruits, lots of protein, egg, chicken, paneer, and all those things. But yes, vitamin D, because we do not get from any resource, so that I make sure that I take. Otherwise, I start feeling sleepy or weak or leg cramps and everything. So, what is your comfort food or kind of food after a busy clinic? वेरी सिंपल पर्सन. दाल चावल मुझे बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है. सिंपल दाल चावल, येलो दाल, सांबर दाल और राइस. And if I can get my chicken along with that, 2 pieces of some tikka or nahi to otherwise kuch bhi chalega. Achar, dal, chawal, that's the simplest thing I like. Yoga or cardio? I did not strength, because I strength training. तो आप वो strength training, any day strength training. I do strength training 5 days in a week, and because muscle mass, if there is muscle mass, one, osteoporosis prevent होता है, calcium deposition होता है, metabolism great होता है, आपके endorphins secrete होते हैं, mental agility बहुत बढ़ जाती है. When I walk in the corridor, whether it's sari or whatever, I feel really good because I am carrying a fit body. My posture is straight, my muscles are taut. So I like strength training and cardio 50-50. But yoga definitely is, I think it's boring for me, but लास्ट में मैं कुछ योगा की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, बट थ्रू आउट आई कैन नॉट डू योगा. फॉर मी और फॉर मेरे जैसा दिमाग जिसका बहुत फास्ट चलता है, योगा काफी स्लो हो जाता है. हाँ, ये बात तो है, योगा कैन नॉट लिव अप टू यू. So one book everyone should read because you're an avid reader. Yeah, so one book which everybody should read is Animal Farm by George Orwell. हर एरा में वो बुक बिल्कुल ट्रूथफुल है. लाइक इट इज अ पॉलिटिकल सटायर. और मैं अपने बच्चों को भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, जबकि वो बहुत ही पतली बुक है, बट दे हैव नॉट रेड. बट इफ यू रीड इट, जॉर्ज ऑरवेल ने इतने साल पहले लिखी थी और आज की डेट में भी वो एप्लीकेबल होता है. सो एनिमल फार्म इज माय फेवरेट बुक एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड रीड. Awesome. One word to describe teenage health today. They have quite a lifestyle disorders. So I think lethargy or obesity. What shall I? Lack of physical activity. So if you have lack of physical activity. Lack of physical activity. I agree.
If you were not a doctor, what would you be? Don't say dancer. I want to hear something else. Don't say dancer. I would have been painter in that. Like my drawing is really good, and I used to draw really nice. But I draw very well. Now I'm out of practice, but मैं अपने बच्चों के लिए बहुत एकदम कार्टून और वो सब कुछ बहुत अच्छे बड़े बड़े बनाती थी, जो कि हाँ, but yes, otherwise see, first was doctor, another was Bharatanatyam dancer, I और know third was dancer, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया आपको. third was I would have been doing Picasso painting, so must be better than Picasso by Wow, that. my God, you were such a, multi-talented, I would say. Awesome. Okay. So that finishes our rapid fire round. It's fun to have that conversation with you because it's always, you always leave one page unturned. Like I feel that I know you so much, then I realize, oh, acha, I don't know that side of you. So, it makes me overwhelmed because I know you're such a dynamic person, and it is such a pleasure always to know things from you, and you do such effortlessly, because carrying the way you carry yourself, that is again something which I want to carry myself when I'm of your age. Because I so much admire it, because I realize, because if you're able to carry yourself well, there's I mean, you're from inside out both ways, you're super confident and you know what you're speaking, and people are ready to listen to you. Yeah, And that's why you have that calmness, you have that poise, at the same time the confidence. So I mean, I admire that. So I admire every bit of it. Thank you very much. Thank you. आज तो मैं हवा में ही लटकी रहूंगी, नीचे जमीन पर ही नहीं आऊंगी. This is not something for flattering. No. And I don't flatter. मुझे नहीं लगता, मैं बोलती नहीं है. Thank you very much. Thank you very much. It was actually बहुत मजा आया. मुझे भी बहुत मजा आया. It was a very candid conversation. Really, I hope that everybody learns, or at least get some wisdom from this talk. Absolutely, they will. And the best thing about these kind of conversation is, although the episode becomes longer, and that's why everyone, I always say before I end the conversation, see, it's very important for you to listen, but I know your mind share is not that you'll be able to listen to a 1 hour conversation. Listen in 1.5x speed. It's something very honest I'm telling you today, that it's for everyone. Like, हमें पता है podcast or long channels or live sessions very hard to consume a 1 hour content. But the best thing you can do it, listen in 1.5x speed, drive and listen because this is what I do. Whenever I want to listen to a TEDx speaker or any kind of motivational where I am feeling low, I listen in 1.5x speed. It goes inside my brain directly. I'm not feeling bored because I know everything is coming fast, because obviously the conversation we are having is a little slower, but our mind is able to recollect about little faster kind of a content. So this is a golden nugget for all of you who are listening, that you must listen to this, but you can listen in 1.5x speed so that you know that you were able to get what we are trying to talk about. So thank you so much, Dr. Aruna. Thank you for your clarity, compassion,